बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि मुश्किल हालात में चीन की जानिब से हिमायत पर मशकूर हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है तो मुश्किल हालात में चीन की जानिब से हिमायत पर मशहूर हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि चीन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुश्किल हालात में चीन की जानिब से हिमायत पर मशकूर हैं। मज़ीद कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। Confidence of the Chinese leadership and people in your abilities. I am certain you will be an effective representative of China's continued peaceful development and the invaluable benefits it has brought the world and particularly our region. As a lifelong friend of China as someone who's had a 3-generational relationship with China, I cherish the legacy of Pakistan-China friendship, and I'm looking forward to working closely with you to strengthen Pakistan-China relations and to take them into the new era. Not only my party, the Pakistan People's Party, has served this relationship for 3 generations. My father working with your former ambassador, before him my mother, and before that my grandfather, our Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif, his brother Mr. Nawaz Sharif, when he was Prime Minister, across the political spectrum and across the political divide. There is absolute unison when it comes to the Pak-China strategic partnership. I can assure Your Excellency that this sentiment is shared by everyone in Pakistan for China and the great Chinese nation. China can always count on Pakistan as its most reliable partner and trusted friend. Friendship with China is the cornerstone of Pakistan's foreign policy. The centrality and criticality of Pakistan's all-weather partnership with China cannot be overstated. A recent manifestation of our friendship was the prompt Chinese assistance and support in the evacuation of our nationals from Sudan, for which I thank you. In the evacuations from Sudan, both sides have lived up to the public expectations and our exemplary partnership's time-honored tradition of unflinching mutual support, particularly in times of crisis. We deeply appreciate China's firm support for Pakistan's territorial integrity, sovereignty, and national development, as well as China's principled and just stance on the Jammu and Kashmir dispute. Pakistan will continue to support China firmly on all its core issues, including the One China policy, Taiwan, Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and the South China Sea. As a flagship of the Belt and Road Initiative, the China-Pakistan Economic Corridor has strategic significance for both our countries, and Pakistan is fully committed to timely completion of CPEC, which we see as a transformational and strategic initiative. तो वज़ीर ख़ारिजा गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। आमिर, पाक चीन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, आगाह कीजिएगा मज़ीद। बिल्कुल, चीनी वजीर ख़ारिजा किंग कैंग और इनके साथ साथ वजीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है और ये चौथा दौर शुरू हो रहा है पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुतल्लिक, जिसमें न सिर्फ मुज़ाकरात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बल्कि दिफा, बाहमी ताउन, सीपैक समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम मामला गौर लाए जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान और चीन के वफूद की भी मुज़ाकरात में शिरकत हुई है। और इस वक्त ये पाक चीन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक 4th राउंड जारी है। इस 4th राउंड में पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक रोड मैप जो है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और इस मुज़ाकरात में इसकी सरबराही कर रहे हैं चीनी वजीर ख़ारिजा चिनगांग एंड पाकिस्तान की तरफ से वजीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुश्तरका तौर पर इस मुज़ाकरात की सरबराही कर रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस
जिसमें मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से जो नई स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, और जिसमें न सिर्फ दिफा, सिक्योरिटी, रीजनल कनेक्टिविटी, जिसमें इलाकाई ताउन, आलमी मसाइल समेत तमाम इशूज के ऊपर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो पार्टनरशिप है उसमें हतमी शक्ल दी जाएगी और रोड मैप जो है वो तय किया जाएगा। इन मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ये है। इसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सह फरीकी कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और इन मुज़ाकरात में भी इलाकाई मसाइल समेत अफगानिस्तान का बुनियादी तौर के ऊपर तमाम जो मसाइल हैं उनके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और ये भी बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद जो सह फरीकी होगी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो चीन के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, और अफगानिस्तान के मसले समेत इलाकाई मसाइल के ऊपर तफसीली बातचीत होगी और अहम फैसले होंगे। लिहाजा चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ये जो दौरा है इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि इसमें न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में जिन इश्यूज के ऊपर तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद से अफ्रीकी कॉन्फ्रेंस भी होगी। बहुत शुक्रिया आमिर सैदाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने सरमायाकारी प्लान नेपरा अथॉरिटी में जमा करा दिया। प्लान के तहत लॉसेस और लोड शेडिंग में कमी की जाएगी। इलेक्ट्रिक का यह दावा है 6 साल सरमायाकारी प्लान के तहत 484 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि सरमायाकारी के असरात बिजली की कीमतों पर नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिक की जानिब से ये दावा किया गया है। मजीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, मजीद बताइएगा इस प्लान के हवाले से। देखिए, हमारी ये 6 साल के इलेक्ट्रिक की जानिब से प्लान जो है वो नेपरा अथॉरिटी में जमा किया गया है, जो 484 अरब रुपए का है। लेकिन इसमें एक अहम बात जो कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि इसके असरात जो है एक आम सारिफ पर नहीं आएंगे। जब हमारी नेपरा में ज़राए से बातचीत हुई तो नेपरा ज़राए ने ये दावा किया है कि इसके जो असरात हैं वो आएंगे और कराची के जो बिजली सारिफिन हैं उन तक ये मुंतकिल होंगे। अगर इस प्लान के हवाले से बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जाएंगे। इसमें 450 किलोमीटर के नए लाइन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि वो तामीर किए जाएंगे। 13 नए ग्रिड्स हैं जो तामीर किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो ऑटो ट्रांसफार्मर्स है उसकी इस्तेदादकार बढ़ाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो निज़ाम चलाया जाएगा। और एक दावा जो ये किया गया है कि लाइन लॉसेस और जो लोड शेडिंग है उसमें कमी लाई जाएगी। तो देखा ये जाएगा कि आया ये दावा है या ये नाफिज भी होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसमिशन लाइन की तामीर और बहाली के लिए 280 अरब और 91 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि बिजली की तकसीमी निज़ाम पर 184 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। और कराची के जो पावर सिस्टम को मदद देने के लिए जो है 18 अरब रुपए जमा किए, जो उस पर खर्च किए जाएंगे। ये प्लान नेपरा अथॉरिटी में जमा किया गया है। अब देखना ये है कि जो 6 साल प्लान है आए ये कामयाब होता है या नहीं, लॉसेस कम होते हैं या नहीं, और जो लोड शेडिंग है उसमें कमी आती है या नहीं। और जो एक अहम बात है, मैं आपको एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि नेपरा ज़राए ने दावा किया है कि 484 अरब रुपए है, इसके असरात जो है आम सारिफ पर आएंगे, क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी के लिए एक चीज़ बनाएं और कहें कि ये अपनी तरफ से है और इसके कोई असरात नहीं आएंगे। ताहम अभी जो है अथॉरिटी देखेगी और जब इसकी मंजूरी होगी तो फिर एक बाज़ाफ्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई के मुकदमात। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने के लिए तलबी नोटिस जारी। इमरान खान को 10 और 11 मई को दिन 2 बजे तलब किया गया है, जबकि इमरान खान सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस्लामाबाद में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। GIT के सामने हाजिर न होने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिल तनोली से। जी आदिल। आज देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल के कॉम्प्लेक्स पेशी में हंगामा आराई के दौरान दहशतगर्दी के मुकदमात में चेयरमैन PTI को GIT की जानब से शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब कर लिया है और इमरान खान को उनकी रिहाइशगाह जमान पार पर नोटिस भेजे गए हैं। 10 और 11 मई को शामिल तफ्तीश होने के लिए GIT की जानब से नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान को पेश होने का नोटिस जो है वो 11 मई को किया गया है। इसी तरह थाना रमना में जो मुकदमा नंबर 154 है, इसमें 10 मई को तलबी का नोटिस किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि पेश होकर GIT के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। पेश ना होने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा थाना CTT में जो मुकदमा नंबर 3 दर्ज है, इसमें भी इमरान खान को 11 मई को तलबी का नोटिस GIT की जानब से जारी किया गया है। जबकि थाना गोडला में दर्ज मुकदमा जो है मुकदमा नंबर 143, इसमें भी इमरान खान को 11 मई को पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में दिन 2 बजे GIT की जानब से तलब किया गया है और तमाम तर तलबी के जो नोटिस हैं वो इमरान खान की
रिहाइशगाह तलबी के नोटिस उनके रिहाइशगाह पहुंचा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद थे। जनवरी से मार्च में बजट खजाना 1395 अरब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। वजारत खजाना की माली साल 2022-23 जुलाई से मार्च की मालियाती ऑपरेशंस रिपोर्ट जारी। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खजाना 3078 अरब रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना की जानिब से ऐसा बताया गया है। जुलाई से दिसंबर तक बजट खजाना 1683 अरब रुपये था। वजारत खजाना की जानिब से ऐसा बताया गया। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुदस्सिर बताएगा, बजट खजाना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो पहुँचा है, वजूहात क्या है? जी, इस वक्त मुल्क की तमाम जो मईशत के इशारिये हैं वो गिरावट का शिकार हैं। अगर देख लिया जाए तो जो डेफिसिट्स हैं वो आए रोज़ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जहां पर हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए महंगाई कंट्रोल करने के लिए, वहां हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए, वजारत ख़जाना ने जो रवा माली साल के दौरान फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि जुलाई से मार्च के दौरान जो बजट खसारा है वो तकरीबन 1400 अरब रुपए का रिकॉर्ड किया गया है। जो रवा माली साल के पहले 6 माह थे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उनके दौरान 1683 अरब रुपए का था बजट खसारा, लेकिन आखिर अगले जो 3 माह थे, जुलाई से मार्च, इनमें मजीद 1400 अरब रुपए का एडिशन हो गया है और अब इस तरह बजट खसारा तकरीबन 3000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। बजट खसारे को रोकने के लिए हुकूमत बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो 10,000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुके हैं। इसी तरह अगर देख लिया जाए तो जो बजट का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है वो डेट एंड सर्विसिंग में जा रहा है। रवा माली साल के दौरान जुलाई से लेकर मार्च तक कर्जों और सूद की अदायगी के लिए तकरीबन 3500 से 3600 अरब रुपए की बड़ी अमाउंट खर्च की गई है, जो कि गुज़श्ता माली साल की निस्बत से बहुत ज़्यादा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान मजीद डेट एंड सर्विसिंग का बोझ इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। रैली आज 3 बजे जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक निकाली जाएगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। ज़ैन, बताइएगा क्या इंतज़ाम किए गए हैं रैली के हवाले से और क्या रूट होगा, कितने बजे जो है इसका आगाज़ होगा रैली का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक मरतबा फिर शहर लाहौर में भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। लाहौर समेत दीगर जो शहर हैं, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्क भर में 4000 मुकामात हैं जहां पर ये एहतजाज किया जाएगा। लेकिन खसूसी तौर पर लाहौर की इस रैली की बात की जाए तो इसकी क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे और जो रैली के अभी तक इंतज़ामात हैं उसके हवाले से 3 बजे रैली का आगाज़ किया जाएगा और 7:30 बजे तक इसका NOC दिया गया है। जो रूट बनाया गया है उसके मुताबिक जमान पार्क, चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह से इस रैली का आगाज़ होगा और ये गढ़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड, वहाँ से रेलवे स्टेशन, वहाँ से नश्तर रोड और मैकलोर रोड से होते हुए ये लक्ष्मी चौक पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगी। और कारकुनान इस रैली में मोटर बाइक पर, गाड़ियों पर और पैदल इस रैली में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान इस रैली की खुद क़यादत करेंगे, ताहम उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ NOC दिया गया है उसके मुताबिक 1500 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी रैली के रास्ते पर रैली के रास्ते पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में रैली निकालने की इजाज़त ना मिली। इमरान खान को दहशत गर्दी के खतरात लाहक हैं। इंतजामिया की जानिब से कहना है रैली की वजह से मेहमान वज़ीर ख़ारिजा की आमदोरफ्त में खलल पैदा हो सकता है। मज़ीद कहा कि ऐसे हालात में रैली या किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिल तनोली से। आदिल, इजाज़त न मिलने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज शाम मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी रैली निकालने का ऐलान किया गया, जिस पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से माजरत की गई है और ये बताया गया है इंतजामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी जलसे, जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं है। इमरान खान को दहशतगर्दी के खतरात लाक हैं। ऐसे हालात में रैली या किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त जो है वो इंतजामिया की जानिब से नहीं दी जा सकती। इसके अलावा चाइना के वजीर खारजा अपने डेलीगेशन के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर है और रैली की वजह से मेहमान वजीर खारजा की आमदरफ्त में भी खलल पैदा हो सकता है। जिले इंतजामिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये बात सामने आई है। साथ ही साथ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से माजी में भी रैलियां निकाली गई हैं और सड़कें
ब्लॉक जो हुई हैं उसका जिक्र भी ज़िली इंतज़ामिया की जानब से किया गया है और उसमें कहा है कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली से मशरूत बयान हनफी जो है उसका दिया था, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और आज की रैली के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया की जानब से माजरत की गई है, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने भी गुज़श्ता रात वाज़े कर दिया गया था कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज है। दफ़ा 144 के पेश नज़र किसी भी अवामी इज्तिमा जलसे जुलूस की इजाज़त जो है वो। बहुत शुक्रिया आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद थे। बहरास आपको वज़ारत ख़ारजा लिए चलें। बिलावल भुट्टो चीनी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा में इस वक्त पौधा लगा रहे हैं। शजरकारी के सिलसिले में ये पौधा लगाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा चीन के इस वक्त पाकिस्तान में 2 रोज़ा दौरे पर यहाँ पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो और चीनी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा में पौधा लगा रहे हैं। आपको बताएं, बिलावल भुट्टो चीनी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा में पौधा लगा रहे हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ये पौधा लगाया है और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा चीन के इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। दफ्तर ख़ारजा में इस वक्त वो मौजूद है। 2 रोज़ा ये सरकारी दौरा है और इस दौरे में मुख्तलिफ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। और इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो दफ्तर ख़ारजा में पौधा लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त दोनों वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। कराची के 11 बल्दियाती हलकों में ज़िमनी इंतख़ाबात 7 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 11 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हो सके थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 7 मई को कराची में यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 11 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन होगा, जिसमें जिला वफ्ती की यूसी 4 न्यू कराची, यूसी 13 और यूसी 6 नॉर्थ नाज़ाबाद शामिल है। इसी तरह जिला कोरंगी की यूसी 2, यूसी 3 शाह लतीफ, यूसी 8 लांडी, जिला गरबी की यूसी 1 और यूसी 2 औरंगी टाउन और यूसी 8 मोमिनाबाद शामिल है। जिला जनूबी की यूसी 2 लियारी बिहार कॉलोनी और जिला किमाड़ी की यूसी 2 बल्दिया शामिल है। अभी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे तो ये हमारे घरों पे आएंगे, हमें वोट दें, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। जैसी वोट मिलने के बाद ये सर से यहाँ से गायब हो जाते हैं। इनकी ना बिजली ना गैस, रात में गैस नहीं होती, दिन में ये गैस 2 बजे तक बंद रखते हैं, तो इनके हुकूमत दे क्या रही है। इलेक्शन कमीशन ने ज़मनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली, लेकिन इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने तक इंतखाबी सरगर्मियों में कोई तेजी नजर नहीं आई। बल्दियाती ऐवान मुकम्मल न होने के बाइस लोगों के बुनियादी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं गटर उबल रहे हैं तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन बहरास आपको वज़ारत ख़ारजा लिए चलेंगे, जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चीनी वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Of core national interest in both bilateral engagements with other countries and in multilateral forums. We greatly appreciate China's steadfast support on all our issues of core national interests, including the principled position on the Jammu and Kashmir dispute. High-level exchanges and bilateral consultative mechanisms are essential for maintaining the momentum of long-cherished relationship. I am delighted to see the 4th strategic dialogue convened shortly after the bilateral political consultations that took place in March 2023 in Beijing. Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. This partnership has grown over the years and enjoys consensus across generations and political divides. In our talks today, we had an in-depth exchange of views on the entire spectrum of bilateral cooperation between Pakistan and China. We agreed on the significance of this partnership for the mutual benefit of our two nations in the face of new developments. Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each other in the decades to come. Pakistan will continue to firmly support China on all core issues of its national interest, including Taiwan, Xinjiang, Tibet, Hong Kong, and the South China Sea. We also agreed on the importance of the China-Pakistan economic corridor and reiterated our abiding commitment to its high-quality development.
As you are aware, that this year we mark the completion of a decade of the China-Pakistan Economic Corridor. CPEC remains a shining example of the Belt and Road cooperation, which has accelerated socio-economic development, job creation, and improvement of the people's livelihoods in Pakistan. CPEC remains a win-win economic initiative open to all investors around the world. Pakistan remains profoundly grateful to China for its generous and timely assistance as we continue to grapple with the headwinds in the global economy. Pakistan-China friendship is irreversible. The mutual warmth and trust between the people of our two countries is a shining example of multicultural cooperation. Pakistan-China friendship is a historic reality, consensus choice of the two nations. Pakistan remains against bloc politics or great power competition of any kind. We look forward to working together with all countries to address our common challenges of development and connectivity. We are committed to remaining engaged with China to promote South-South cooperation, especially in light of emerging global concerns like human-induced climate change. Pakistan and China would continue to engage in a mutually beneficial cooperation to deliver tangible benefits to both our people. In our dialogue today, we also noted that peace and stability in Afghanistan remains vital for socio-economic development, connectivity, and prosperity in the region. We will continue to work together with all stakeholders for peaceful, stable, prosperous, and united Afghanistan. In the end, I would like to once again welcome the State Councillor to Pakistan. I wish the State Councillor a pleasant stay on his inaugural visit to Pakistan, and I look forward to working with His Excellency to continue furthering our time-tested and cherished partnership. I thank you, and then I will turn over to the State Councillor and Foreign Minister. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान चीनी हम मनसब के साथ अहम मामला ज़ेर गौर है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल हो गए हैं। मज़ीद कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी बहुत अहम है। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मनसूबा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और चीनी हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मनसूबा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी बहुत अहम है। मुज़ाकरात के दौरान चीनी हम मनसब के साथ अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथे दौर का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी बहुत अहम है। सीपैक दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम मनसूबा है। मुज़ाकरात के दौरान चीनी हम मनसब के साथ अहम मामलात ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का चौथे दौर का आगाज़ हो चुका है और इन मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा अहम मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीक पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकतदारी की तौसीक़ करेंगे।